So hello everybody, in this video we'll be talking about antibiotic susceptibility testing, which is abbreviated as AST. It is one of the most important tests done in the microbiological laboratories, and from the point of view of the exams, this can be a short answer question, and in the practical exams there is a dedicated station for AST wherein you are supposed to measure the zone of inhibition and interpret your findings, and in Viva you will be asked questions based on the general theory of AST. So in this video we'll be talking about AST in detail. To begin with, let us have a basic introduction of this topic. AST is one of the most important investigations in a microbiological laboratory, which I have already mentioned. So as you know, there is an increasing problem of resistance among organisms, and antimicrobial resistance has been named as the biggest pandemic of our generation. Therefore, AST becomes very important because for a clinician, when a patient comes to you with any pathology, for example, a patient comes to you with upper respiratory tract infection or UTI, and you isolate organism from the respective specimens. Now you need to prescribe the patient with antibiotics to treat the disease, of course. And for this treatment, you require the susceptibility pattern or the resistance pattern of the organism, because without it, the antibiotics will be of no use. For example, you prescribe one group of antibiotics for a particular organism and the organism has already developed resistance towards it, then the antibiotic will be completely useless towards the organism and the patient will not get cured. So AST becomes very important because only then you'll be able to realize and know the resistance pattern of the organism and prescribe the appropriate antibiotics for the same. Now there is one concept जो पता होना चाहिए सबको, दैट इज AST सारे ऑर्गेनिजम्स के लिए नहीं किया जाता है. इट डिपेंड्स कि वो ऑर्गेनिज्म उस एरिया का कमेंसल ऑर्गेनिज्म है या फिर पैथोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म है. फॉर एग्जांपल, अगर इकोलाई को हम लेते हैं, अगर स्टूल स्पेसिमेन से हमें इकोलाई आइसोलेट होता है, जो ऑफकोर्स होगा, तो हम उसमें AST नहीं करेंगे बिकॉज इकोलाई स्टूल में नॉर्मली भी प्रेजेंट होता है क्योंकि वो इंटेस्टाइन का कमेंसल है. कमेंसल है बेसिकली दी रेसिडेंट फ्लोरा, उसको वहाँ पे प्रेजेंट होना ही है. हाउएवर, अगर इकोलाई को हम यूरिन से आइसोलेट करते हैं जहाँ पे उसका प्रेजेंस एबनॉर्मल है, तब हमें AST करना होगा बिकॉज वी आर सपोज टू ट्रीट द इन्फेक्शन. सिमिलरली, अगर पेशेंट कम्स टू यू विद फेरेंजाइटिस और टॉन्सिलाइटिस एंड वहाँ के जो नॉर्मल कमेंसल ऑर्गेनिजम्स आपको मिलते हैं, यू नीड नॉट परफॉर्म AST फॉर देम. यू ओनली नीड टू परफॉर्म AST फॉर ऑर्गेनिजम्स विच आर नॉट सपोज टू बी प्रेजेंट एट अ रिस्पेक्टिव लोकेशन. तो विद दिस बेसिक नॉलेज हम AST में आगे बढ़ सकते हैं. So the first thing that you should know is the classification of AST. There are different methods that you can use for AST. So broadly it is classified into phenotypic and genotypic methods. As the name suggests, genotypic methods में will basically be using PCR, that is polymerase chain reaction, जिससे हम रेसिस्टेंस करवाने वाले जीन्स को हम लोकेट कर सकते हैं या आइडेंटिफाई कर सकते हैं. जैसा MEK जीन जो MRSA, दैट इज मेथिसिलिन रेसिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस में होता है, VAN-A जीन, इन सारे जीन्स को हम PCR से पता लगवा सकते हैं. बट वेरी कॉमनली हम फिनोटाइपिक मेथड्स करते हैं जो मैनुअली हमें करना होता है. सो फिनोटाइपिक मेथड्स ओवरऑल 3 बेसिक क्लासिफिकेशन में डिवाइड किए गए हैं. वी हैव गॉट डिफ्यूजन मेथड्स, वी हैव गॉट डाइल्यूशन मेथड्स एंड देन वी हैव गॉट डिफ्यूजन प्लस डाइल्यूशन मेथड्स. Now diffusion method में we have the Kirby-Bohr disk diffusion method, which is like the most commonly used method, जिसके बारे में हम majorly इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. And we have other methods as well. We have Stokes method. Dilution method में we have got broth dilution, then we have agar dilution. Broth dilution again is subdivided into macro dilution and micro dilution. अभी macro dilution ट्यूब में किया जाता है और micro dilution microtiter प्लेट में किया जाता है. You need not know so much in detail about this, just अगर नाम पता हो तो it's enough. And then we have the diffusion and dilution method, जिसमें the very famous epsilometer और the E-test यूज़ किया जाता है. We'll be talking about this end में briefly, बट हम इस वीडियो में अपना डिस्कशन मेजरली फोकस करेंगे ऑन किर्बी-बोर डिस्क डिफ्यूजन मेथड, क्योंकि यही प्रैक्टिकल्स पे रखा भी जाता है एंड कॉमनली आपसे वाइवा में पूछा भी जाता है. Then we have got certain automated method जिसमें हम Vitek 2, Phoenix system, Microscan, walk-away system यूज़ करते हैं. So let's begin with our discussion. The main topic of this video, that is the Kirby-Bohr disk diffusion method. So ये 1966 में डेवलप किया गया था and it again is the most commonly used method in the laboratories. Most commonly used method इसलिए है क्योंकि बहुत convenient method होता है and इसको conventional AST भी बोला जाता है. अब
किर्बी बॉट डिस्क डिफ्यूजन मेथड में कौन से मीडिया को यूज़ किया जाता है? इट इज़ द वेरी फेमस म्यूलर हिंटन अगार। ना म्यूलर हिंटन अगार को क्यों यूज़ किया जाता है? पहली चीज़ तो ये है कि इट इज़ अ satisfactory मीडिया फॉर द ग्रोथ ऑफ मोस्ट नॉन फेस्टिडियस पैथोजेंस. Secondly, it shows acceptable batch-to-batch reproducibility for AST, and because of these two reasons, Mueller-Hinton agar जो है बहुत commonly use किया जाता है and it is considered as an ideal media. However, अगर ऑर्गेनिज्म जो हम ग्रो करना चाहते हैं या फिर जिसकी AST पैटर्न रेसिस्टेंस पैटर्न हम देखना चाहते हैं वो फेस्टिडियस है, यानी फेस्टिडियस ऑर्गेनिज्म बेसिकली आर दोज ऑर्गेनिज्म जिनको बहुत हाई न्यूट्रिएंट अमाउंट चाहिए होता है ग्रो करने के लिए, वो नॉर्मल बेसल मीडिया में ग्रो नहीं कर पाते हैं, तो बेसिकली उनकी डिमांड ज़्यादा है. तो अगर एक ऑर्गेनिज्म है जो हम ग्रो करना चाहते हो फेस्टिडियस है, फॉर एग्जांपल स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, तो हम म्यूलर हिंटन ब्लड अगार यूज़ करते हैं रादर देन म्यूलर हिंटन अगार. अभी ब्लड अगार में हम क्या ऐड करते हैं 5 to 10% डिफिब्रिनेटेड शीप ब्लड डालेंगे, तो इससे म्यूलर हिंटन अगार म्यूलर हिंटन ब्लड अगार बन जाएगा. ब्लड के आने की वजह से वो एक इनरिच मीडिया हो जाएगा एंड देयरफॉर उसमें फेस्टिडियस ऑर्गेनिज्म आराम से ग्रो कर पाएंगे. सो दिस इज द बेसिक अबाउट द मीडिया जो हम यूज़ करते हैं. अब आते हैं हम द मेन पार्ट, दैट इज द प्रोसीजर. AST किर्बी बॉट डिस्क डिफ्यूजन मेथड से किया कैसे जाता है? ओके, सबसे पहले जिस ऑर्गेनिज्म का आपको रेसिस्टेंस पैटर्न देखना है वाया AST, आपको उस ऑर्गेनिज्म को एक कल्चर मीडिया में ग्रो करना होगा. इट कैन बी अ न्यूट्रिएंट अगार, इट कैन बी ब्लड अगार, किसी भी कल्चर मीडिया में अगर आप उसको ग्रो करोगे तो उसके कॉलोनीज आपको मिल जाएंगे. अभी उसके कॉलोनीज जब आपको मिल गए तब आपका AST करने का प्रोसीजर शुरू होगा. तो सबसे पहले आफ्टर द ऑर्गेनिज्म हैज़ बीन कल्चर्ड, आप 3 से 5 कॉलोनीज जो सिमिलर मॉर्फोलॉजी के हो, जो सिमिलर लुकिंग हो, आप उस कल्चर प्लेट से लोगे. स्ट्रेट वायर से ले सकते हो या फिर कोई लूप से ले सकते हो, और आपको सबको एक साथ पिक करना होता है. एंड देन आप पिक करने के बाद उसे उन्हें इनोकुलेट करोगे. अब ये डिपेंड करता है कि आप कौन से मीडिया में इनोकुलेट करोगे. यू कैन ईदर इनोकुलेट दी कॉलोनीज जो आपने लिए इनटू पेप्टोन वाटर, 1 ml पेप्टोन वाटर, या फिर सेलाइन. वो डिपेंड करता है कि ऑर्गेनिज्म फेस्टिडियस है या नॉन फेस्टिडियस है. अगर वो नॉन फेस्टिडियस है तो आप उसको इनोकुलेट करोगे 1 ml ऑफ पेप्टोन वाटर में. बट अगर वो फेस्टिडियस है यानी उसकी डिमांड ज़्यादा है तो आप उसको सेलाइन, नॉर्मल सेलाइन में उसे इनोकुलेट करोगे. अभी पेप्टोन वाटर में अगर आप उसे इनोकुलेट करते हो, आपको 37 डिग्री सेल्सियस के में उसको इंक्यूबेट करना होगा फॉर अराउंड 2 to 6 आवर्स. अभी 2 to 6 आवर्स इनोकुलेट करने के बाद उस सोल्यूशन में एक टर्बिडिटी अपीयर होती है. सो बेसिकली व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट इज, लेट अस अज्यूम कि ये हमारा कल्चर मीडिया है, न्यूट्रिएंट अगार है या फिर ब्लड अगार है. इसमें मैंने कॉलोनीज ग्रो किया है उस ऑर्गेनिज्म का, और ये है मेरे पास एक वायर लूप, या तो मैं एक स्ट्रेट वायर भी यूज़ कर सकता हूँ. अभी इस वायर लूप से मैं 3-4 कॉलोनीज जो है सिमिलर मॉर्फोलॉजी के एक साथ मैं उन्हें उठाऊँगा, और उठाने के बाद मैं किसी कल्चर मीडिया में, या दैट इज़ पेप्टोन वाटर या फिर नॉर्मल सेलाइन में, उन्हें इनोकुलेट कर दूंगा. इनोकुलेट करने के बाद मैं उसे इंक्यूबेट करूंगा 37 डिग्रीज में 2 to 6 आवर्स के लिए, जब तक टर्बिडिटी अपीयर नहीं हो जाती है. ओके, अब जब आप उसे इंक्यूबेशन से निकाल दोगे तो सिंस बैक्टीरिया उस सोल्यूशन के अंदर ग्रो कर रहा है तो टर्बिडिटी अपीयर होगी, सोल्यूशन क्लियर नहीं होगा. अब टर्बिडिटी को आपको कंपेयर करना होता है एक स्टैंडर्ड सोल्यूशन से, और टर्बिडिटी का जो यूनिट होता है दैट इज मैकफार्लैंड. जैसे प्रेशर का पास्कल होता है, फोर्स का न्यूटन होता है, उसी तरह टर्बिडिटी का यूनिट मैकफार्लैंड होता है. तो आपने जो टेस्ट ट्यूब में आपने जो अपने कॉलोनीज को इनोकुलेट किया है उसे आपको कंपेयर करना होगा विथ अ स्टैंडर्ड सोल्यूशन जिसकी टर्बिडिटी होती है 0.5 मैकफार्लैंड यूनिट. ठीक है, तो अभी 3 केसेस हो सकते हैं. पहला केस तो ये हो सकता है कि आपका जो सोल्यूशन था उसकी टर्बिडिटी स्टैंडर्ड सोल्यूशन से कम हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपने जो सोल्यूशन बनाया है, आपकी जो कॉलोनीज है जिसको आपने इंक्यूबेट करा था, उसकी टर्बिडिटी स्टैंडर्ड से ज़्यादा हो. इसका मतलब ये हो सकता है कि जिसमें टर्बिडिटी कम थी उसमें बैक्टीरिया का ग्रोथ थोड़ा कम हो, और जिसमें टर्बिडिटी ज़्यादा हो इसका मतलब ये हो सकता है कि बैक्टीरिया का ग्रोथ उसमें ज़्यादा हो गया. तो अब आप क्या करोगे? अगर आपकी टर्बिडिटी कम है, बैक्टीरिया का ग्रोथ उस सोल्यूशन में कम हुआ है, तो आप उसे फर्दर इंक्यूबेट करने डाल दीजिए. और अगर टर्बिडिटी ज़्यादा हो गई है दैन द स्टैंडर्ड, बैक्टीरिया ज़्यादा मल्टीप्लाई कर गया है, तो आप उसे डाइल्यूट करोगे विद स्टेराइल पेप्टोन वाटर डालकर. अगर आपने सेलाइन में किया तो आप सेलाइन वाटर डाल के उसे डाइल्यूट कर दोगे. अब जो हम कंपेयर करते हैं, हम एक स्टैंडर्ड सोल्यूशन यूज़ करते हैं. अभी उस स्टैंडर्ड सोल्यूशन को बनाने का टेक्निक क्या होता है? बेसिकली हम एक बेरियम सल्फेट का ट्यूब यूज़ करते हैं जिसमें हम बेरियम सल्फेट सोल्यूशन बनाते हैं, जिसमें यू नीड टू रिमेंबर दीज वैल्यूज. ओके, लाइक 1.15 ml ऑफ 1% बेरियम क्लोराइड एंड 9.95 ml ऑफ 1% H2SO4 हम यूज़ करते हैं, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होकर बेरियम सल्फेट बन जाता है.
हम लेटेक्स सोल्यूशन भी यूज़ कर सकते हैं। एंड देयर इज़ वन ऑटोमेटेड सिस्टम ऑल्सो नोन एज द डेंसी चेक। अभी सिंस वो ऑटोमेटेड है तो आप मैनुअल एरर्स के चांसेस कम हो सकते हैं और कन्वीनियंट हो जाता है वो। एंड देर इज़ वन मोर मेथड नोन एज द फिनोटाइपिक मेथड, जिसमें हम एक कार्ड यूज़ करते हैं, जैसे हम विकरहैम कार्ड बोलते हैं। अभी इस विकरहैम कार्ड में ब्लैक कलर के लाइंस बने होते हैं अगेंस्ट द वाइट बैकग्राउंड। आई विल बी डिस्प्लेइंग एन इमेज, इसमें आप समझ जाओगे। सो वो जो लाइंस बने होते हैं उसके अगेंस्ट आप दोनों सोल्यूशन के कलर को कंपेयर करोगे। बेसिकली विजिबिलिटी को कंपेयर करते हो आप। विकरहैम कार्ड को आप पीछे रखते हो सोल्यूशन के, तो आपको टर्बिडिटी की वजह से वो लाइंस बड़े क्लियरली नहीं दिखाई देते हैं। तो एक सर्टेन पॉइंट में जब 0.5 मैकफार्लैन टर्बिडिटी पहुंच जाती है तो उतना विजिबिलिटी होगा उस सोल्यूशन का, उसके बेसिस में आप बता सकते हो कि टर्बिडिटी, डिजायर्ड टर्बिडिटी पहुंच चुकी है या नहीं। अब अगेन सिंस ये मैनुअली किया जाता है तो ऑब्जर्वर टू ऑब्जर्वर वेरिएशन हो सकता है। ओके, अभी आपको 0.5 मैकफार्लैन टर्बिडिटी मिल चुकी है, आपने वो अचीव कर ली है। उसके बाद आप क्या करोगे? उसके बाद आपको एक कॉटन लेना है, बेसिकली एक स्वाब लेना है जिसमें एब्जॉर्बेबल कॉटन हो, और उसके बाद आप उसे डिप करोगे इन दी ब्रॉथ। जो आपका सोल्यूशन है उसे आप ब्रॉथ उसमें आप डिप करोगे। डिप करने के बाद आप रोटेट करोगे। रोटेट आप इसलिए कर रहे हो कि आप पूरी तरह से उसे स्मीयर कर लो विद द कॉलोनीज। उसके बाद आप जो कॉटन बड है उसे आप टेस्ट ट्यूब के साइड्स में स्क्वीज करोगे ताकि जो एक्सेस फ्लूइड है वो ड्रेन हो जाए। देन आप एक पेट्री डिश लोगे जिसमें आपने ऑलरेडी म्यूलर हिंटन अगार फॉर नॉन फेस्टिडियस ऑर्गेनिज्म एंड म्यूलर हिंटन ब्लड अगार फॉर फेस्टिडियस ऑर्गेनिज्म आपने रेडी करके रखा है। तो आप एक पेट्री डिश लोगे जिसमें ये म्यूलर हिंटन अगार या फिर म्यूलर हिंटन ब्लड अगार ऑलरेडी प्रेजेंट हो। उसके बाद आप लॉन कल्चर करोगे। आपको पता होना चाहिए कि 4 तरह के कल्चर होते हैं। स्ट्रीक कल्चर होता है, स्ट्रोक कल्चर होता है, लॉन कल्चर जिसे हम कारपेट कल्चर भी बोलते हैं, और लिक्विड कल्चर भी होता है, जिसमें आप लॉन कल्चर करोगे। लॉन कल्चर में बेसिकली आप होमोजेनस कॉलोनीज बनाते हो थ्रू आउट द कल्चर मीडिया। उसके बाद एक टेक्निक होता है 60 डिग्री रोटेशन क्लॉकवाइज आप करोगे, 3 बार आप स्वैप करोगे, और फाइनल स्वैप करते वक्त आप रिम के अराउंड, पेट्री डिश के रिम के अराउंड लास्ट स्वैप करोगे ताकि आप होमोजेनियसली उस पूरे कॉलोनी को डिस्ट्रीब्यूट कर लो। उसे फिर 3 मिनट के लिए रखना होता है ताकि एक्सेस मॉइस्चर ड्रेन आउट हो जाए। अगर मैं अभी इसी चीज़ को डेमोन्स्ट्रेट करूँ तो लेट्स एज्यूम कि ये मेरा टेस्ट ट्यूब है जिसमें मैंने ऑलरेडी कॉलोनीज ग्रो कर दी है, और इंक्यूबेट करने के बाद अभी इसकी टर्बिडिटी 0.5 मैकफार्लैन स्टैंडर्ड हो चुकी है। मैंने इसे कंपेयर कर लिया बेरियम सल्फेट के साथ या फिर डेंसी चेक के साथ। तो अब मैं एक कॉटन स्वैब लूँगा जिसमें एब्जॉर्बेबल कॉटन है। उसके बाद मैं इसे इसके अंदर डिप करूँगा। डिप करके अच्छे से रोटेट करूँगा ताकि पूरे कॉटन स्वैब में ये पूरे कॉटन में स्मीयर हो जाए। उसके बाद मैं साइड्स में इसे प्रेस करूँगा ताकि एक्सेस मॉइस्चर जो है वो पूरी तरह से ड्रेन आउट हो जाए। ये होने के बाद मैं लूँगा मेरी पेट्री डिश जिसमें मैंने MHA या फिर MHBA रेडी रखा है। उसके बाद मैं शुरू करूँगा अपना लॉन कल्चर। लॉन कल्चर करने के लिए मैं इसे ऐसे रब करूँगा। एक बार रब हो जाने के बाद मैं इसे क्लॉकवाइज रोटेट करूँगा 60 डिग्री। फिर मैं फिर से इसे ऐसे रब करूँगा, फिर से रोटेट करूँगा 60 डिग्री, और उसके बाद फिर से मैं इसे स्वैप करूँगा। तो मैंने 2-3 बार ये कर लिया। फाइनल टाइम में मैं क्या करूँगा, इसके रिम के अराउंड स्वैप करूँगा ताकि होमोजेनियसली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो पहली बार स्वैप किया, 60 डिग्री रोटेट किया, दूसरी बार स्वैप किया, 60 डिग्री रोटेट किया क्लॉकवाइज, फिर से स्वैप किया, 60 डिग्री रोटेट किया। फाइनली मैंने इसे रिम के अराउंड कर दिया, सर्कमफेरेंस के अराउंड कर दिया ताकि पूरी तरह से होमोजेनियसली ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। ये होने के बाद मैं इस ऑलरेडी जो मैंने लॉन कल्चर बनाया है इसे मैं 3-4 मिनट के लिए छोड़ दूंगा ताकि जो एक्सेस मॉइस्चर है वो रिमूव हो जाए। अब मैं क्या करूँगा, नाउ आई टेक एंटी माइक्रोबियल डिस्क्स जो मेरे पास ऑलरेडी प्रेजेंट होंगे। तो और मैं उन एंटी माइक्रोबियल डिस्क को लूँगा और फोर्सेप्स की मदद से उसे इस मीडिया पे डालूंगा जो ऑलरेडी मैंने लॉन कल्चर कर लिया है इस पेट्री डिश में जिसमें MHA था। उस पर मैं अभी एंटी माइक्रोबियल डिस्क डालूंगा विद द हेल्प ऑफ अ फोर्सेप्स। अभी विद एवरी एंटी माइक्रोबियल डिस्क आई टेक, अगली एंटी माइक्रोबियल डिस्क लेने से पहले मैं फोर्सेप्स के टिप को स्टेरिलाइज करूंगा विद द हेल्प ऑफ फ्लेम। क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं फोर्सेप्स से एंटी माइक्रोबियल डिस्क को कल्चर मीडिया में डाल तो रहा हूँ, बट कहीं ना कहीं फोर्सेप्स का टिप जो होता है वो टच कर जाता है कल्चर मीडिया को, जो मुझे नहीं चाहिए क्योंकि रिजल्ट में डिफरेंसेस आएंगे। तो इसलिए मैं हर बार फ्लेम स्टेरिलाइज करूँगा द टिप ऑफ द फोर्सेप्स ताकि ये प्रॉब्लम ना आए और कंटामिनेशन ना हो सिंपली। ओके,
तो ये मैंने लॉन कल्चर कर लिया था ऑलरेडी, 3 मिनट के लिए रखा था ताकि इसका मॉइस्चर ड्रेन हो जाए। अब मैं एंटी माइक्रोबियल डिस्क ले रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ अ फोर्सेप्स। मैंने एक एंटी माइक्रोबियल डिस्क लिया, इस पर डाला, दूसरा एंटी माइक्रोबियल डिस्क लिया, उसे इस पर डाला, बट ये दोनों करने के बीच में मुझे इसके टिप को फ्लेम स्टेरिलाइज करना होगा 2 to 3 सेकेंड्स के लिए, बस, ज़्यादा नहीं। अब ये हो जाने के बाद मैंने लॉन कल्चर कर लिया है, मैंने एंटी माइक्रोबियल डिस्क भी डाल दिया है। अब मुझे विद इन 15 मिनट्स उस पूरे पेट्री डिश को, जिसमें MHA है, जिसमें लॉन कल्चर है और एंटी माइक्रोबियल डिस्क है, उसे मुझे इंक्यूबेटर में डालना होगा। बट इंक्यूबेटर में डालने से पहले सबसे पहले इस जो पेट्री डिश है इसकी एक लिड होती है जो मैं उस पर डालूंगा और मैं इंक्यूबेटर में डालूंगा, बट विद द लिड फेसिंग अपवर्ड्स। मतलब ये जो प्लेट है ये डाउनवर्ड्स फेस करेगा एंड जो लिड है वो ऊपर की तरफ फेस करेगा। अब ये ऐसा क्यों? क्योंकि मॉइस्चर है यहाँ पे और वी डोंट वांट कि जो प्रोडक्ट्स ऑफ कंडेंसेशन है वो मीडिया पे गिरे, क्योंकि अगर मैं ऐसे रखता हूँ तो कंडेंसेशन होगा लिड पे और उसके बाद जो ड्रॉपलेट्स बनेंगे वो मीडिया पे गिरेंगे और कंटामिनेशन होगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि वो हो, तो इसलिए मैं उल्टा रखता हूँ इसे अपसाइड डाउन, ताकि प्रोडक्ट्स ऑफ कंडेंसेशन मीडिया पे ना गिरे। अब ये हो जाने के बाद मैंने इसे इंक्यूबेटर में रख दिया विद इन 15 मिनट्स 37 डिग्री सेल्सियस पे 16 to 18 आवर्स के लिए। अभी मुझे रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करना है आफ्टर दिस टाइम। तो इंटरप्रेट कैसे करूँगा? मुझे जोन ऑफ इनिबिशन मिलेगा। नाउ व्हाट इज जोन ऑफ इनिबिशन? एक पर्टिकुलर एंटी माइक्रोबियल डिस्क के अराउंड एक एरिया होगा जहाँ पे बैक्टीरिया का ग्रोथ नहीं होगा, यानी कॉलोनीज वहाँ पे नहीं बनेंगे। इसका मतलब ये है कि उस एरिया पे वो बैक्टीरिया, वो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं कर पा रहा है। तो ये बेसिकली बताता है कि कितना जोन है जो बैक्टीरिया के ग्रोथ से इनिबिटेड है by the antimicrobial. So this basically gives you two things. One is the strength of the antibiotic against that organism, and the second thing is the resistance of that organisms. अगर वो ऑर्गेनिज्म उस एंटीबायोटिक से या एंटीमाइक्रोबियल से ससेप्टेबल है तो वो नहीं ग्रो करेगा उसके अराउंड, बट अगर वो उस एंटीमाइक्रोबियल से रेसिस्टेंट है तो उसके अराउंड वो आराम से ग्रो कर पाएगा। जितना बड़ा होगा जोन ऑफ इनिबिशन उतना ज़्यादा ससेप्टेबल ऑर्गेनिज्म होगा, बट जितना छोटा होगा जोन ऑफ इनिबिशन उतना ही रेसिस्टेंट होगा ऑर्गेनिज्म टुवर्ड्स दी पर्टिकुलर एंटीमाइक्रोबियल। सो रिमेंबर दिस। अब हम उस जोन ऑफ इनिबिशन को कैसे मेजर करेंगे? आइडियली हमें स्लाइडिंग कैलिपर या फिर वर्नियर कैलिपर से मेजर करना होता है, डायग्राम ऑफ विच मैं दिखा दूंगा स्क्रीन पे। अदरवाइज अगर हमारे पास ये दोनों अवेलेबल नहीं होते हैं तो हम रूलर भी यूज़ कर सकते हैं। अभी आफ्टर मेजरिंग आपको क्लासीफाई करना होता है दी ऑर्गेनिज्म या फिर दी एंटीबायोटिक का जो आपको जोन ऑफ इनिबिशन मिला है एज पर दी CLSI चार्ट। CLSI स्टैंड्स फॉर क्लिनिकल एंड लेबोरेटरी स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट। 3 कैटेगरीज में आप उसको क्लासीफाई कर सकते हो, ससेप्टेबल, इंटरमीडिएट या फिर रेसिस्टेंट। अभी आपको जो रिजल्ट्स है आपको ऑफकोर्स गुड लाइटिंग में ही देखने होंगे, अदरवाइज इंटरप्रिटेशन में एरर आ सकता है। ओके, देयर इज समथिंग नोन एज द 15-15-15 रूल, विच बेसिकली स्टेट्स दैट कि विद इन 15 मिनट्स आपको लॉन कल्चर करना होगा। विद इन लॉन कल्चर करने के 15 मिनट्स के अंदर आपको एंटी माइक्रोबियल एजेंट के जो डिस्क होते हैं उसे आपको कल्चर मीडिया पे डालना होगा, और ये करने के 15 मिनट के विद इन ही आपको उस पूरे मीडिया को विद द लिड आपको इंक्यूबेटर में डालना होगा। सो दिस इज द 15-15-15 रूल जो वाइवा में पूछा जाता है। तो रिमेंबर दिस, विद इन 15 मिनट्स लॉन कल्चर, विद इन 15 मिनट्स एंटी माइक्रोबियल डिस्क, एंड विद इन 15 मिनट्स पुट द एंटायर थिंग इन द इंक्यूबेटर। ओके, so the incubation time for most of the organisms is 16 to 18 hours. However, there are certain organisms जिनको 24 hours से ज़्यादा का incubation period चाहिए होता है, क्योंकि grow करने में उनको टाइम लगता है। We have Haemophilus and Neisseria species because first of all they are fastidious. अभी एंटी माइक्रोबियल डिस्क जो होते हैं वो बनते कैसे हैं? बेसिकली वो वॉटमैन नंबर 1 फिल्टर पेपर से बनते हैं और एक डिस्क का साइज 6 मिलीमीटर का होता है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आप जो एंटी माइक्रोबियल डिस्क प्रोक्योर करके लाते हो उसे आपको स्टोर करना होता है रेफ्रिजरेटर में 2 से 8 डिग्री सेल्सियस में, जो बेसिकली वैक्सीन स्टोरेज का भी टेम्परेचर होता है। और जब आप उसे यूज़ करने वाले होगे तो 1 to 2 आवर्स पहले उसे रूम टेम्परेचर में रखना होगा फॉर 1 to 2 आवर्स बिफोर यू यूज़ इट एक्चुअली। ओके, देयर आर सर्टेन फैक्ट्स जो हमें जानने होंगे, जो वाइवा में पूछे जाते हैं, MCQs में भी पूछे जाते हैं। पहला चीज़ तो ये है कि आप जो पेट्री डिश यूज़ करते हो MHA के लिए उसका डायमीटर कितना होता है। तो उस प्लेट का डायमीटर 100 mm हो सकता है या फिर 150 मिलीमीटर्स हो सकता है, एंड 100 मिलीमीटर्स इज द मोस्ट कॉमनली यूज डायमीटर।
तो एक कल्चर प्लेट में आप कितने डिस्क रख सकते हो? अब ये डिपेंड करता है पहले तो इस बात पे कि उस प्लेट की साइज़ कितनी है, उसका डायमीटर कितना है, 100 का है या फिर 150 का प्लेट है। और दूसरी बात ये कि ऑर्गेनिज्म जो आप जिसकी एएसटी आप कर रहे हो वो नॉन फेस्टिडियस है या फिर फेस्टिडियस है। इस टेबल को याद रखो, थिंग्स आर सॉर्टेड। अगर ऑर्गेनिज्म नॉन फेस्टिडियस है एंड आपकी प्लेट 100 डायमीटर की है तो 6 डिस्क आप रख सकते हो, और अगर 150 की है तो आप 12 डिस्क रख सकते हो। ऑन दी अदर हैंड अगर ऑर्गेनिज्म फेस्टिडियस है और 100 की प्लेट है तो 4 डिस्क रख सकते हो, और 150 की प्लेट है तो 9 डिस्क रख सकते हो। आगे ऑफकोर्स फेस्टिडियस ऑर्गेनिज्म के लिए हम ज़्यादा डिस्क नहीं रख सकते, नॉन फेस्टिडियस कंपैरिजन में वो कमी होंगी। दूसरी चीज़ तो ये कि 2 डिस्क जो आप रखते हो प्लेट में, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए? मिनिमम डिस्टेंस 24 की डिस्टेंस होनी चाहिए फ्रॉम द सेंटर ऑफ वन एंटी माइक्रोबियल डिस्क टू द सेंटर ऑफ द अदर एंटी माइक्रोबियल डिस्क। नेक्स्ट इज कि एक डिस्क की डायमीटर कितनी होती है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, इट इज 6 mm। तो अगर आपको ऐसी कोई कॉलोनी मिलती है, सोचिए ये आपका इंटरप्रिटेशन है, एक एंटी माइक्रोबियल डिस्क है और उसके इंक्यूबेशन के बाद आपको इतनी बड़ी जोन ऑफ इलिमिनेशन मिलती है, और एक कॉलोनी है जिसके अराउंड आपको इतनी बड़ी जोन ऑफ इनिबिशन मिलती है, और एक एंटी माइक्रोबियल डिस्क है जिसके अराउंड आपको जोन ऑफ इनिबिशन मिल ही नहीं रही है। तो आप जब मेजर करोगे तो आपको इस एंटी माइक्रोबियल के सेंटर से, एंटी माइक्रोबियल डिस्क के सेंटर से लेकर कॉलोनी के एंड तक, यहाँ तक की डायमीटर मेजर करनी होती है। सो दिस इज योर जोन ऑफ इनिबिशन फॉर दिस एंटी माइक्रोबियल डिस्क। हाउएवर अगर आपको यहाँ पे इसके अराउंड कोई ग्रोथ नहीं मिली, इसका मतलब यह है कि ये जो ऑर्गेनिज्म आप ग्रो कर रहे हो यहाँ पे वो इस एंटी माइक्रोबियल से पूरी तरह से रेसिस्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल सोचिए ये अगर ये एम्पिसिलिन है, इसका मतलब ये है द ऑर्गेनिज्म दैट यू आर ग्रोइंग हियर इज कम्प्लीटली रेसिस्टेंट टू एम्पिसिलिन। तो अगर आपसे पूछा जाए तो इसकी जोन ऑफ इनिबिशन कितनी होगी, तो यू शुड नॉट राइट 0, क्योंकि आपको जोन ऑफ इनिबिशन दिख ही नहीं रही है। यू शुड नॉट राइट 0, आपको लिखना होगा 6 mm। वाई 6 mm? बिकॉज जो एंटी माइक्रोबियल डिस्क है वो 6 mm डायमीटर का है, तो उसकी डायमीटर को आपको लिखनी होती है क्योंकि इस एरिया को उसने ऑक्यूपाई कर रखा है। तो जोन ऑफ इनिबिशन इज नॉट 0, इट इज 6 mm, विच इज बेसिकली द डायमीटर ऑफ द एंटी माइक्रोबियल डिस्क। ओके, द लास्ट थिंग इज हम इंटरप्रिटेशन के लिए कौन से स्टैंडर्ड्स फॉलो करते हैं? हम CLSI के स्टैंडर्ड्स फॉलो करते हैं, दैट इज क्लिनिकल एंड लेबोरेटरी स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट। There are other institutes as well. We have UCAST and BSAC, which is European Committee on AST, and British Society for Antimicrobial Chemotherapy. अगर कोई पूछे तो बताइए, अदरवाइज इट इज़ मोस्टली CLSI, और CLSI के चार्ट्स रखे जाएंगे इन योर रेस्पेक्टिव स्टेशन, जिससे देखकर आप इंटरप्रेट कर सकते हो। सो फाइनली, जस्ट फॉर अ समरी, ये है मेरी कल्चर मीडिया जिस पे मैंने ऑर्गेनिजम्स को ग्रो कर रखा था। तो मैं क्या करूँगा, वायर लूप से स्ट्रेट वायर से या फिर लूप से 3 से 5 कॉलोनीज उठाऊंगा ऑफ द सेम मॉर्फोलॉजी, फिर मैं उसे इनोक्यूलेट करूंगा, अगर नॉन फेस्टिडियस है इन पेप्टोन वाटर, अगर फेस्टिडियस है तो इनटू सेलाइन। इंक्यूबेट करूंगा 37 डिग्रीज के में फॉर 2 to 6 आवर्स। टर्बिडिटी डेवलप होगी, टर्बिडिटी को मैं 0.5 मैकफार्लैंड स्टैंडर्ड से कंपेयर करूंगा। वंस आई हैव अचीव दैट, व्हाट आई विल डू इज आई टेक अ कॉटन स्वैब, आई पुट इट इनसाइड द ट्यूब, उसे अच्छे से रोटेट करूंगा ताकि पूरी तरह से स्मीयर हो जाए। एक्सेस फ्लूइड को स्क्वीज करके ऑन द इनर वॉल्स ड्रेन करूंगा। उसके बाद मैं MHA वाला प्लेट या फिर MHBA वाला प्लेट उठाऊंगा और उस पर स्मीयर करना, स्वैप करना शुरू करूंगा। एक बार स्वैप करूंगा, 60 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करूंगा, फिर से स्वैप करूंगा, 60 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करूंगा, फिर से स्वैप करूंगा। 2-3 बार करने के बाद फाइनल टाइम में मैं रिम के अराउंड या फिर सर्कमफेरेंस के अराउंड इसे स्वैप कर दूंगा होमोजेनियस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। उसके बाद 3 से 5 मिनट के लिए रख दूंगा ताकि एक्सेस मॉइस्चर ड्रेन आउट हो जाए। उसके बाद एंटी माइक्रोबियल डिस्क डालूंगा विद द हेल्प ऑफ अ फोर्सेप्स, स्टेरिलाइज करूंगा उसके टिप को विद द हेल्प ऑफ फ्लेम 2 से 3 सेकेंड के लिए, कंटामिनेशन ना हो इसलिए। एंटी माइक्रोबियल डिस्क डाल देने के बाद मैं इस पर लिड डालूंगा, इसे अपसाइड डाउन फेस करूंगा, लिड ताकि ऊपर फेस करे। इंक्यूबेटर में डाल दूंगा 37 डिग्री सेल्सियस में फॉर 16 to 18 आवर्स फॉर मोस्ट ऑर्गेनिजम्स। 15-15-15 रूल को याद रखिएगा। 15 मिनट्स के अंदर आपको लॉन कल्चर करना होता है, 15 मिनट्स के अंदर आपको एंटी माइक्रोबियल डिस्क डाल देने होते हैं, और विद इन 15 मिनट्स आपको द एंटायर प्लेट को विद द लिड यू आर सपोज टू पुट इट इन द इंक्यूबेटर। सो दिस इज बेसिकली ऑल अबाउट किर्बी-बोर डिस्क डिफ्यूजन मेथड। जस्ट अ फ्यू वर्ड्स अबाउट स्टोक्स मेथड एंड एप्सिलोमीटर और ई-टेस्ट। स्टोक्स मेथड में क्या होता है, जो कल्चर प्लेट है हमारा, उस कल्चर प्लेट को 3 जोन्स में डिवाइड कर दिया जाता है, अपर जोन, मिडिल जोन एंड लोअर जोन। मिडिल जोन में जो है आप
कंट्रोल को डालते हो, कंट्रोल ऑर्गेनिज्म को डालते हो. देयर आर सर्टेन ऑर्गेनिज्म जो कंट्रोल के लिए यूज़ किए जाते हैं. एंड देन टॉप और बॉटम जोन में आप जो टेस्ट ऑर्गेनिज्म है जिसके लिए आप एएसटी कर रहे हो उसे आप यहाँ पे डाल दोगे. और जो एंटी माइक्रोबियल डिस्क है आप इन लोग दोनों के बॉर्डर में डालते हो ताकि वो दोनों को एंटी माइक्रोबियल जो है वो दोनों के एएसटी के लिए यूज़ किया जाए. इसका एडवांटेज ये है कि अगर मीडिया में थोड़ी सी भी चेंजेस आती है वो कंट्रोल और टेस्ट दोनों में रिफ्लेक्ट होता है. तो ये हो गया स्टोक्स मेथड. और एप्सिलोमीटर या ई टेस्ट में हम एक एब्जॉर्बेबल स्ट्रिप यूज़ करते हैं जिसमें एंटी माइक्रोबियल का एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन ऑलरेडी इम्प्रेगनेटेड होता है. फिर अगेन हम सिमिलरली जैसे हम किर्बी बॉर्ड डिस्क डिफ्यूजन कर रहे थे, हम इसमें भी एक लॉन कल्चर करेंगे और वो एप्सिलोमीटर के जो स्ट्रिप है उसे हम सेंटर में डाल देंगे और हम अगेन इंक्यूबेट कर देंगे. इंक्यूबेशन पीरियड ख़त्म हो जाने के बाद हमें दिखाई देगा कि उस एप्सिलोमीटर स्ट्रिप के अराउंड एक जोन ऑफ इनिबिशन बना हुआ है. अब वो जोन ऑफ इनिबिशन उस एप्सिलोमीटर के स्ट्रिप को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है वो होगा हमारा MIC स्टैंड्स फॉर मिनिमम इनिबिटरी कॉन्सेंट्रेशन. इट इज़ द लोएस्ट अमाउंट ऑफ एंटी माइक्रोबियल और द लोएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंटी माइक्रोबियल और द हाइएस्ट डाइल्यूशन ऑफ एन एंटी माइक्रोबियल एजेंट दैट इज रिक्वायर्ड टू इनिबिट द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिजम्स. तो इस बेसिस से हम एप्सिलोमीटर टेस्ट या फिर ई टेस्ट करते हैं. So I hope antimicrobial susceptibility testing or AST is clear now for all of you. If any one of you has any doubt regarding this, you can put your doubts in the comment section. I'll try my best to answer them. And thanks for watching.